After a while, we wish to start with the third technical session, sir. I request Honorable Shri Justice Dharmadhikari, sir, to kindly come and chair the session, sir. I request Professor Dr. Priya Sepaha and Ms. Shubham Thukral to kindly come and co-chair this session. I would like to inform that Dr. Shekhar Sheshadri, he is going to join us via online mode. Cheers लगा. Honorable Shri Justice Anand Trial. Trial. Moving ahead, I would like to introduce the chair. In this session, we have the distinct privilege of and gracious presence of my Lord Honorable Shri Justice Shushrut Arvind Dharmadhikari. His Lordship is Administrative Judge of High Court of Madhya Pradesh, Bench at Indore, and Chairperson, POXO Committee of the High Court. Trial. I, on behalf of the Academy, as well as on my own behalf, extend a warm and cordial welcome to my Lord. My Lord was Trial. born on 8 July 1966 at Raipur. His Lordship practiced in civil, criminal and constitutional branches of law and has experience of more than 24 years as an advocate in the High Court of Trial. Madhya Pradesh at Jabalpur. His Lordship was appointed as Judge of High Court of Madhya Pradesh in year 2016 and Permanent Judge in year 2018. My Lord is going to chair the technical session 3, addressing child Trial. psychopathy, invisibilization of meta-minorities and psychosocial vulnerabilities of child survivors of violence and therapeutic recommendations for children with disabilities. I request my Lord for his introductory remarks, sir. देखिए I am looking seeking permission, sir, to Yes, yes. start with Mr. Seshadri thereafter, sir. Actually, he is a flight at 5 p.m., sir. अच्छा, So after your remarks, would like to we'll start start with Mr. Seshadri. Thank you, sir. समय की मर्यादा को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि एक्सपर्ट्स ही शुरू करें इसको. In that case, Yes. my lord, we'll start with Mr. Seshadri. Let me introduce. He is actually representing Samvad. Samvad is a national initiative and integrated resource for child protection, mental health, and psycho-socio care established by the Ministry of Women and Child Development and is located at the Department of Child and Adolescent Psychiatry, Nimhans, Bangalore. Samvad, led by Dr. Shekhar Sheshadri, was established to extend its support and activities to all the states in the country with a multidisciplinary team of child care professionals with expertise in training and capacity building, program and policy research pertaining to child mental health protection and law. I welcome you, Mr. Sheshadri. Sir, am I audible? Sir, I request you to address the gathering, sir. Trial. Sir, you're on mute. If you सर could just श्रीमान unmute. को श्रीमान को आवाज आ रही है सर? सर मिनट सर, जस्ट अ मिनट. Trial. सर सर अनम्यूट करें सर, आपके पार्ट से बंद है सर, रिक्वेस्ट है. यहां से सब ओके है सर? Trial. Am I audible now? सर प्लीज सर, प्लीज सर. Yeah. No, I just said it's a matter of great honor that in an initiative of the Madhya Pradesh High Court called Samvad, our national initiative, has come together. इस सत्र में मेरे साथ शुभम कृष्ण बोरा भी हैं, जो संवाद की पॉलिसी और लॉ अफसर हैं. जैसे मलॉर्ड ने कहा, समय की पाबंदी की वजह से आई विल ट्राई टू बी एफिशिएंट. शुभम, लेट्स गो इनटू स्लाइड शेयर.
काफी चीजें अब तक कही गई है। हम इनविजिबलाइजेशन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो बच्चे, दूसरे दिव्यांग बच्चे तो एक तरह से मेटा माइनॉरिटीज जो एक शब्द जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, और इसको हम अगर एक वल्नरेबिलिटी और हक के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए किस तरह के मुद्दों पे हमें ध्यान देना होता है। नेक्स्ट शुभम। एक तो यह है कि मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक दृष्टिकोण से अगर हम दिव्यांग स्थिति को देखें और इसको समझें और इसके आधार पे संरक्षण से जुड़ी हुई जो भी जोखिम होता है बच्चों को उसको समझें, और फिर एक राइट्स इन्फॉर्म्ड दृष्टिकोण जो कानूनी और प्रोटेक्शन से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियां हैं दिव्यांग बच्चों के लिए, उसको हम किस तरीके से उसकी प्रक्रिया को हम समझें। नेक्स्ट। तो देखिए 21 डिसेबिलिटी की तो बात हो चुकी है, इस पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देखेंगे। बस इतना यह है कि डिसेबिलिटी अलग अलग रूप और अलग अलग डायमेंशंस में प्रस्तुत होता है, इस पे ऑलरेडी बात हो चुकी है। नेक्स्ट। तो ये ओवरलैप अगर आप देखें, एक तो सोशल एक्सक्लूजन और स्टिग्मेटाइजेशन जो होती है, साथ साथ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज जो है और इससे जुड़ी हुई बैरियर्स जो है, अड़चने जो है फॉर एक्सेसिंग केयर, इन तीनों को अगर आप जोड़ें तो देखिए कि कैसे वल्नरेबिलिटी कंसर्न्स दिव्यांग बच्चों की बढ़ती जाती है। नेक्स्ट शुभम। इसको और हम गहराई से और विस्तृत तरीके से देखते हैं कि अगर हम बच्चों में देखें कि शोषण का जो रिस्क जो है वो कैसे बढ़ता है, द ससेप्टेबिलिटी टू फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल अब्यूज ऑन द वन हैंड, द ग्रेटर लाइक्लीहुड ऑफ नेग्लेक्ट ड्यू टू इंक्रीज केयर टेकिंग बर्डन, तो ये अब्यूज और नेग्लेक्ट का रिस्क बढ़ता है। मानसिक स्वास्थ्य पे देखिए किस तरह का असर पड़ता है। देयर आर हाई रेट्स ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन कॉजिंग साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। साथ साथ व्यवहारिक चुनौतियां जो हैं, मैनिफेस्टेशंस ऑफ बिहेवियर प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनकी इमोशनल और सोशल नीड्स, जरूरतें जो होती है वो न पूरी हो तो किस तरह से बिहेवियरल चैलेंजेस आती है। इस पे जुड़े फैमिली डायनामिक्स, रिश्तों पे जो तनाव पड़ता है, इंक्रीज स्ट्रेस, पोटेंशियल ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स, और सपोर्ट अगर बस न हो इसके वजह से और खास करके फैमिली और कम्युनिटी सिस्टम्स पे, तो इस पे किस तरह का असर पड़ता है। गणित अगर आप करें, इनको जोड़ें तो देखिए कि कैसे ये रिस्क लीगल कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाती है। इसी वजह से अगर हम लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स पे ध्यान दें और दो दृष्टिकोण में देखें, एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है और दूसरी जो बौद्धिक चुनौतियां होती है। एक तो अनसुपरवाइज्ड टाइम, इंक्रीज एक्सपोजर टू हार्मफुल सिचुएशंस, दूसरा जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस जो है सोशल एक्सेप्टेबिलिटी के लिए, जिस तरह से इनकी ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि इनकी कोग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास जो है इनका, खास करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में, तो जो असर्टिवनेस स्किल्स जो होती है, कोई इन पे वार करे, जोर करे, तो चाहे ये पेयर प्रेशर हो या कंप्लायंस का मामला हो, द इंक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ बीइंग कोवर्स्ड इनटू इलीगल एक्टिविटीज और इनटू अदर रिस्क्स, और जजमेंट जो इनकी होती है इन डिसीजन मेकिंग और लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो इससे प्रेशर जब तनाव पे होते हैं, चुनौती की सिचुएशन में होते हैं, they may take decisions which actually brings them into conflict with law, and therefore inability to effectively resolve conflicts to seek professional help. इसीलिए जो टारगेटेड सपोर्ट इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है दिव्यांग बच्चों के लिए जस्टिस सिस्टम में, ताकि इनकी खुशहाली और वेलबींग को हम कायम रखें, यह बड़ा मुख्य हो जाता है यह मामला। चलिए इस पे और हम गंभीरता से देखते हैं। एक मुद्दा यह है कि अगर हम कॉम्पिटेंस और रिलायबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन कोर्ट देखें,
मिसाल के तौर पे मुजफ्फरपुर कांड जब हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने केस को सीबीआई को सौंपा और हमें आदेश दिया कि हम इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की सपोर्ट करें, और हमारा संवाद का टीम जो था वो मुजफ्फरपुर में थे। जितनी भी वहां लड़कियां थी उनसे हमारी बातचीत हुई। 150 पन्ने का हमने रिपोर्ट सबमिट किया जो एफआईआर के साथ लॉन्च किया गया। इसमें इस केस में स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस ब्रजेश ठाकुर, अगर आप 4 मुद्दों को देखें, इनकी क्षमताएं जो है इनने दिव्यांग स्थिति के वजह से, दूसरा अनुभव का विवरण डिटेल्ड नैरेटिव, तीसरा कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर लैंग्वेज स्किल्स में कुछ कमी हो अड़चने हो तो ये कैसे अपने अनुभव के बारे में बताएंगे, और चौथा मानसिकता इनकी जो है मेंटल एंड इमोशनल जानकारी जो है इनकी, ये चारों अगर कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो किस तरह से इनकी कॉम्पिटेंस और रिलायबिलिटी जब केस अगर कोर्ट में आए तो किस तरह की चुनौतियां कोर्ट के लिए आती है, बच्चों के लिए और सिस्टम के लिए। चलिए इसमें और ध्यान देते हैं। अगर आप लीगल दृष्टिकोण से देखें, यूएन कन्वेंशन पे आर्टिकल 23 को अगर आप देखें, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, या अगर आप यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी को देखें, the articles on accessibility, education and non-discrimination, या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पे देखें द कॉम्प्रिहेंसिव राइट्स, और जेजे एक्ट को देखें जहां स्पेशल प्रोविजन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में है। तो लीगल फ्रेमवर्क्स है और इसका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है, अस्थाना साहब ने जिक्र किया और भी सत्र में इसका जिक्र हुआ है। लेकिन इसको एक और तरीके से देखते हैं जो चुनौतियां हैं। एक तरीके से अगर देखें, अगर स्पेशलाइज्ड लीगल रिप्रेजेंटेशंस की कमी हो और कोर्टरूम में एकोमोडेशन जो है दिव्यांग स्थिति के लिए वो बस ना हो, तो लीगल प्रोसीजिंग में डिले होती है और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में भी गैप होता है। साथ साथ अगर डेडिकेटेड लीगल एड सर्विसेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स न हो, और उसकी आवश्यकता है, और जो एक्सेसिबिलिटी जो है इन ऑल कोर्ट रूम, जो मैंडेटेड एंड फंड एक्सेसिबिलिटी, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और जो भी मैकेनिज्म्स है मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट इंप्लीमेंटेशन के लिए, इसको हम और स्ट्रेंथन किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें चुनौतियां भी हैं और यही हमारी सॉल्यूशंस भी बसती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रस्ताव यह है, एवरी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ is fundamentally a child in need of care and protection, particularly those with disabilities. While law enforcement addresses legal issues, these children should primarily be supported by child protection services, highlighting the need for systemic change to ensure their rights and well-being, and calling for a unified approach where their voices are heard and safeguarded. हर बच्चा जो कानून के संघर्ष में आता है is, was and continues to be a child in need of care and protection. इस विषय को अगर हम नजर में रखें, आगे बढ़ते हुए, क्या कहा था एम.के. गांधी ने? The true measure of any society can be found in how it treats its most vulnerable members. और यहां आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बच्चों की बात कर रहे हैं, और अब उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिनकी स्थिति दिव्यांग है। इस आधार पे शुभम, बात को आगे बढ़ाएं आप। Thank you, sir. A very good afternoon to your lordships and the august members on the dais. Thank you, sir, for actually painting a picture of what the multiple vulnerabilities that children with disability face look like and how they intersect in order to compound the very vulnerable and precarious state in which children with disability find themselves in, right? However, the legal guarantees that Sir talked about are things that are reflected in the legal
in the legal principles enshrined in various legislations in the country, right? We'll be looking at some of these legislations in order to understand how these vulnerabilities actualize in the form of rights, and these rights are upheld through various legislations that we have in our country, right? After this, what we will be doing is that we'll be looking at a few implications of these vulnerabilities that children with disability live under and the rights they have as a subsequent alleviation measure of those rights, of those vulnerabilities. What are the implications of these in the day-to-day context of a child's life in their interactions with the legal systems, and what can be done to make those interactions better as we move forward with the various legislations at hand. So let's look at the Juvenile Justice Act, right? Section 3 talks about the core guiding principles, the general principles, which are the guiding framework for all decision makers in every decision that they make for a child who is in conflict with the law or a child who is in need of care and protection. And therefore, as Sir mentioned, since the likelihood or the propensity of child with disability coming in conflict with the law and or coming in need of care and protection is much higher than any other child, therefore these principles become very important for us to understand intricately, and particularly within the context of the rights which also exist for CWDs separate from the JJ Act itself, right? The first such right, which is extremely important, is the principle of dignity and worth. And for children with disability, this implies equal dignity in the context of both individual, relational, and social context, right? What is individual context? Individual context is the extent of positive experiences that such children have received because of their own experiences, devoid of any other form of social relations. Relational dignity is the dignity which children with disability derive out of positive experiences with family and other people who have a relationship with. And last but not the least, and something which is very important for us, is that the principle of dignity and worth is also actualized in the social context where children interact with members of society, with systems in society who they are unfamiliar with, and that is where the system that we represent owes children the best in terms of upholding their dignity and worth in every instance that they come in contact with this system, right? Principle of best interest, which allows children to develop full potential, including and the idea of potential for children with disability, therefore being something which Sir already highlighted with regards to the multiple vulnerabilities that they face. Principle of positive measures, which looks at reducing the vulnerabilities of children with disability, being the primary goal for the actions that are taken for them. And of course, principle of participation, the very fact that even children with disability have the right to be heard, not just under the JJ Act, but under the larger auspice of the UNCRC at every stage of their involvement with the system, be it as a CNCP and CIC or CICL, is something that needs to be entailed. And in order to facilitate a child to be heard, it is also very important that we make the necessary accommodations with regards to the environment and support which facilitates their participation at every stage of their engagement with the system. On that light, let's look at how the RPWD Act intersects with the JJ Act to make a more complex and comprehensive net of entitlements and rights that are warranted for such children, right? Firstly, the idea of reasonable accommodation. However, when it comes to questions of access to justice, as we are well aware of, it is not just reasonable accommodation which is enough. We also have to look at the fact that we have to provide procedural accommodation for issues of access to justice when it comes to children with disability, because let us understand that under Section 13 of the Right of Persons with Disabilities Act, children with disabilities have the legal capacity as both a holder of rights and an active actor under the law as well.
which means their participation in the justice system becomes extremely important. And in order to facilitate such access to justice, it is incredibly important that even if we have to undertake disproportionate or undue burden, we have to go ahead and take that undue or disproportionate burden to facilitate their accommodation within the justice systems. And this is something which is enshrined in the international principles and guidelines on access to justice for persons of disabilities, which was released by the United Nations. Then we have the Mental Health Care Act, which under Section 14 goes ahead and talks about the fact that the children, include people with mental illness, including children with mental illness. We've already seen how that is mental illness itself can form a disability for such people. Have the ability, if they have the ability to make informed consent, can actually take decisions on their healthcare and treatment, which implies that even when we are actually talking about their rehabilitation, it is important to take their consent. Similarly, they have the right to access affordable, good quality, and geographically available, accessible mental health care as well. Last but not the least, the procedural accommodations that we talk about are enshrined in the POCSO Act when we talk about the child-friendly procedures that act as procedural accommodations to ensure access to justice for child victims of sexual abuse, particularly with regards to recording of a statement of child by police and magistrate, medical examination, presumption of guilt and mens rea, and inquisitorial powers that are large inquisitorial powers that are granted to the special court. So, given that we now understand what the vulnerabilities look like for such children and how those rights enshrine and actualize those vulnerabilities, let us look at certain actionables. In order to understand how those rights and vulnerabilities can actually be alleviated, those vulnerabilities can be alleviated through the system of rights we have by taking particular instances of children, CICLs and CNCPs who also happen to be children with disability, right? Firstly, on the notion of preliminary assessment under Section 15 of the Juvenile Justice Act. Am I audible, Yes, sir. Shubham sir? There is Yes, a sir. request. Actually, we are having time restraint. Could you please sum up the things in a bit short span of time? Actually, we are Okay, short sir. of time. Give me 5 minutes, There is a 5 to request. 7 Yes, minutes, yes. I'll Thank you finish so it. much. Okay, sir, no worries. The first idea is that in Barun Chandra Thakur's judgment, which Ananda Sanaji also touched upon, Samvad Nimhance's methodology for preliminary assessment was prescribed by the Honorable Supreme Court of India. In that preliminary assessment methodology, that Nimhance's methodology, we have that when we are actually evaluating the mental capacity of children in conflict with the law, it actually accounts for disability in the form of intellectual disability, mental health disorder, and developmental disability. Similarly, in terms of physical capacity, it accounts for locomotor and sensory disabilities of children in conflict with the law who are also children with disabilities, as well as when we consider the circumstances under which an offense was committed by the particular CICL, we also look at both proximal factors which are near the event or near the offense itself, but also distal factors, distal circumstances as well, from the time the mother is pregnant with the child, in order to understand how these mental health morbidities can actually come about, can originate and actually result in mental health disorders and developmental disabilities, which lead children with disabilities to come in conflict with the law, right? Similarly, on the question of bail, the very idea of what defeats the end of justice is something where we can adopt a child-centric perspective and locating it in the context of the purpose of the act. Therefore, the developmental needs of the child or his rehabilitation is something that could be looked at while actually granting bails to such CICLs, and this was something which was also enshrined in the case of Master Abhishek versus State of Delhi, right? Now, what are the implications under the POCSO Act, right? And forensic interviewing techniques can be adopted in order to better facilitate children who are children with disabilities who have been sexually abused.
whenever we are eliciting evidence from under the POCSO Act from such children, it is important that we take the assistance of mental health professional before actually the forensic interviewing of the child, where we inquire about the abuse. It is important to also conduct a psychosocial and mental health assessment to find out CSA associated psychiatric morbidity and mental status examination. And also the developmental assessment should also be conducted to actually find out whether the child has the capacities, the developmental capacities to actually go ahead and to provide us with evidence, and to what degree and to what extent can we actually go ahead and take out evidence from such a particular child, right? This can be corroborated with IQ tests and relevant measures and scales as well. After that, we have abuse inquiry, where we have to go ahead and adopt for certain children with disability, adopt non-verbal interviewing methods for children with communication difficulties, including sign language. Also understand sign language is something which is not understood by all children with disability. Therefore, we have to be wary and conscious about that as well. Actions and gestures, paper, pencil, pictures, including anatomical dolls, at least for confirmatory purposes when we are talking about eliciting evidence from children. For the role of support persons and court preparation interventions that we can have for CWDs, I would like to invite Dr. Shekhar to go ahead and throw some light on the Muzaffarpur case and how we help children with mild intellectual disability to provide evidence. थैंक यू वेरी मच शुभम। बस संक्षिप्त में 2 मिनट में बस 2-3 चीजें कहना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर कांड में 47 बच्चे थे, उनमें से करीब 20-25 लड़कियों से हम एविडेंस नहीं ले पाए क्योंकि तीव्र मानसिक रोग थी या दीर्घ लेवल की मंदता थी। लेकिन माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है, कैसे हम प्री ट्रायल इंटरवेंशंस के साथ जो इम्प्लीकेशंस होती हैं एब्यूज नैरेटिव के लिए और कोर्ट प्रिपरेशन के लिए, तो ये काफी डिटेल में हमारे पास अवेलेबल है। शुभम नेक्स्ट। साथ साथ जो कोर्ट प्रिपरेशन होता है, जो क्षमताएं हैं उसका हम कैसे रीएसेस करें, क्योंकि जब डिलेज होती हैं समय अनुसार उनकी क्षमताएं भी बदलती रहती हैं। साथ साथ जज, पीपी और डिफेंस अटॉर्नी के साथ, ताकि हमारी असेसमेंट रिपोर्ट जो है और परिस्थिति अनुसार हमारे तौर तरीके जो है प्रश्न का, वो किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम एंड ब्रेक्स एंड सो ऑन इन यूजिंग प्लेन लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट, बाकी रही बात प्लेसमेंट की, जो डिसीजंस जो है फैमिली वर्सेस इंस्टीट्यूशन, ये डिबेट जो है, ये चर्चा वाद विवाद तो चलता रहता है, बट असेसमेंट और एसआईआर जो है ये बहुत ही आवश्यक एक प्रिकर्सर है टू मेक एनी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो फॉर्म 7 जो है एसआईआर सीआईसीएल का, फॉर्म 22, ये जो है आवश्यकता अनुसार संपूर्ण तरीके से जो वल्नरेबिलिटी और रिस्क को कवर नहीं करती है, खासकर की मानसिकता और दिव्यांग स्थिति को लेके। इसीलिए जो शुभम ने बात की थी साइकोसोशल और मेंटल हेल्थ असेसमेंट, ये अति आवश्यक हो जाता है, इंक्लूडिंग डेवलपमेंटल असेसमेंट। शुभम नेक्स्ट। आखिरी नोट जो सीसीआई जो है फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, फिट फैसिलिटी का मतलब क्या है, एंड चिल्ड्रंस होम्स जो है जो केयर ट्रीटमेंट के लिए है, हर एक बच्चा जो वहां प्लेस होता है, लेकिन क्या हम रीजनेबल एकोमोडेशन सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, मेंटल इलनेस के लिए, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, जेजे एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अगर आप देखें, और ये ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम्स के लिए भी लागू है। और अगर मानसिक रोग हो तो कैसे हम साइकेट्रिक फैसिलिटी में इनको ट्रांसफर करें फॉर ट्रीटमेंट एंड नेसेसरी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अंडर सेक्शन 93 ऑफ द जेजे एक्ट। बाकी इंस्पेक्शंस का तो आप लोग सबको मालूम है, स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट किस तरीके से करें विच आर प्रिस्क्राइब इन द जेजे एक्ट, ताकि जितनी भी अधिकार और हक और एंटाइटलमेंट है ये इनको उपलब्ध हो। आखिरी 2 स्लाइड्स, रिहैबिलिटेशन। एक तो प्लेसमेंट की बात, फैमिली इंस्टीट्यूशन, इज फैमिली ऑलवेज द बेस्ट प्लेस, रिस्क क्या है, जोखिम किस तरीके से हो सकता है, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए क्या करें, अगर स्कूल नहीं जा रहा हो तो किस तरह से हम करें, होम आयु अनुसार, एजुकेशन का क्षेत्र है, शिक्षा को लेके हम कैसे कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्पेशल स्कूल्स इफ रिक्वायर्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग।
और जहां मानसिक स्वास्थ्य और डिसेबिलिटी का प्रश्न है, कैसे स्पेशलाइज असेसमेंट, जरूरत हो तो औषधि का उपयोग, किस तरह से ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, स्टिमुलेशन, पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, ये सब जो है साथियों, आखिरी स्लाइड जो है हमारा संवाद का जो काम है, जो हम लायज करते हैं अलग अलग प्रोफेशनल्स के साथ, टीसीपीओ को कैसे डेटाबेस मेंटेन करना चाहिए, कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एम्पैनल्ड मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, जेजेबी के साथ हम कैसे कोऑर्डिनेट करें डेटाबेस के लिए, और ये जितनी भी धारणाएं हैं इसको जोड़ के ये संवाद से हमारी काफी जो मटेरियल्स रेडी हैं और वो अवेलेबल है, इंटीग्रेटिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, integrating child forensics into POCSO, essential child and adolescent mental health interventions for psychosocial care, the legal psychosocial mental health interventions in juvenile justice, then essential interventions and skills for working with child sexual abuse, children in conflict with law, children in need of care and protection, children affected by sexual abuse and violence. तो ये जितनी भी ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, अब तक हमने करीब ऑलमोस्ट 26,000 लॉ एनफोर्समेंट और जुडिशियल प्रोफेशनल्स, 30,000 मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ, चाइल्ड प्रोटेक्शन के करीब 12,000 कर्मचारी और शिक्षा के क्षेत्र में ऑलमोस्ट 82,000 कर्मचारी, तो लगभग हम 1,20,30,000 सर्विस प्रोवाइडर्स, ड्यूटी बेरर्स जो सीमावर्ती कार्यकर्ता है, उनको हमने प्रशिक्षण के द्वारा जो संवाद का मैंडेट है ये हम कर चुके हैं। आखिरी में हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश राज्य और हाईकोर्ट का संवाद, ये 2 दिन का इवेंट जो है, इसमें शामिल होना और हमारा अनुभव और हमारी कुछ विचार जो है उसको व्यक्त करना, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। शुभम के तौर से और संवाद की टीम के तौर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर, प्रणाम। Sir, seeking permission to moving ahead, sir, we would like to welcome our rest of the guests. I request Nidhi ma'am to please come and welcome our guests by giving a sapling. Professor Dr. Priya Sepaha. And Ms. Shubham Thukral. Thank you, Nidhi ma'am. I am having the privilege to introduce our guest. Professor Dr. Priya Sepaha is Professor and Dean, School of Law and Public Policy, Avantika University, and Founder Director, Law Colloquium. She holds an MA MPhil in English and an LLB, LLM and PhD in law. She has worked extensively in the field of criminology, penology, criminal law, personal law and contemporary issues. She is a prolific writer and researcher with membership to various academic and professional bodies across the globe. She has been a speaker at various forums and received numerous awards. I request Sepaha ma'am to move ahead with the technical session. Ma'am, please. Honorable Justice S.A. Dharmadhikari sir, Honorable Justice Anand Pathak sir, all the dignitaries present here. I understand that you all are exhausted by now, but since morning we are continuously listening to the certain words like mental illness, mental retardation, child with disabilities, and we are watching and we are listening them with a very empathetic way and in a very as a victim. But I am here to shift your focus to be empathetic to delinquency. Now my topic is child psychopaths. As you all know that whenever there is a heinous offense, a brutal killing, a rape, incest or anything which is unusual, cannibalism, आप सुनते हैं कि किसी ने किसी को मार दिया, काट दिया, खा लिया, पका दिया,
इस तरह की चीज़ें जब आप सुनते हैं तो what are the first things which comes into your mind? Who are those person? There are certain labels which we used to give them. We call them as a monster, we call them as a animal, we call them as a perverted mind, and there is a fashion to call them as a psycho. But my dear friends, there is no word called psycho. We are having a psychologist and a clinical psychiatrist even here. There is no word called psycho. It is a trend which has been now initiated by I don't know by whom, but the thing, this type of disease, psychopathy, should be considered in a very serious manner, and you should know and we should know the seriousness and the impact of psychopathy when it is in a child. We are here to discuss about some of the major issues related to the child. Now, as far as child psychopathy is considered, as I am having a shortage of time and I have to address about this particular thing, I must say that this particular thing, child psychopathy, is a multidisciplinary subject which is related to sociology, psychology, criminology, penology and law, definitely. ये सारे लोगों से रिलेटेड सब्जेक्ट है. क्यों ये सारे लोगों से रिलेटेड सब्जेक्ट है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने सोसाइटी में इस तरह के लोगों को पाते हैं. सबसे पहले बात ये आती है कि हु आर द साइकोपैथ्स. अब हु आर द साइकोपैथ्स के पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, द थिंग, दिस पर्टिकुलर टर्म साइकोपैथी इज़ ऑफन ओवरलैप्ड बाय मेनी अदर टर्म्स लाइक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, like sociopath, like narcissist, like conduct disorder. बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिसको हम सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं, which should not be stated as a synonym. बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप लोग प्लीज़ अगर आप लोग सुने तो you will find that these are a very sensitive topic which you have to understood. आपको अगर किसी भी व्यक्ति को आप सुनते हैं कि there is a chest pain, किसी के दिल में चेस्ट में पेन हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या लगता है कि उसे क्या हुआ होगा? कोई कहता है उसे हार्ट अटैक होगा, कोई कहता है उसे कार्डियक अरेस्ट हुआ, कोई कहता है एंजाइटी हुआ, कोई कहता है डिप्रेशन हुआ, कोई कहता है कि उसे कुछ गैस्ट्रोएंटाइटिस हुआ. मगर सही बात कौन बताता है? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिसीज़. व्हाई आई एम कोटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, that for physical illness we are very well aware about the type of the diseases, because this we can understand, this is happening to us. But when it comes to the mental illness, why there is so much overlapping of the statements? In law, I always say, I am a dean and you all are, maximum are the judges from the judicial field, you are much I must say आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता है ये चीज़, बिकॉज यू आर प्रैक्टिकली डीलिंग विद ऑल दिस थिंग्स. देयर इज़ नो सिनोनिम इन लॉ. सिनोनिम नहीं होता. अगर दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इफ़ देयर इज़ इंसैनिटी एंड अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, बोथ आर हैविंग अ डिफरेंट मीनिंग. तो हाउ कम conduct disorder, psychopathy, sociopathy, narcissism can be used as a synonym? And how come it is possible that they should be not only treated but also at the time of the judgment and whenever we have to establish a criminal liability in the courtroom, how it can be treated in the same manner like unsoundness of mind? अगर हम चाइल्ड साइकोपैथी को थोड़ा सा अलग करके हम थोड़े बड़े पर आ जाते हैं, हम भारतीय न्याय संहिता पर आ जाते हैं. जब वो इंडियन आईपीसी था तब भी हम जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 84 में सिर्फ इंसैनिटी और अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करते थे. क्यों हम कोर्ट में उनकी बात नहीं करते हैं जब कहीं भी इस तरह के केस आते हैं? मैं आपको एक निठारी केस के बारे में बोलती हूँ. निठारी का जब केस आया तो जब क्या हम उसको सिर्फ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या इंसैनिटी कहकर ख़त्म कर सकते हैं? नो. वाई देयर इज़ नॉट रिटन? आई वॉज वेरी होपफुल जब जे एक्ट को भी अमेंडमेंट हुआ था. I was very hopeful when it was converted, when the amendment was Bharatiya Nyaya Sanhita. The offence is related to mental illness, that there must be a category that should be defined. कैसे आप एक ही को unsoundness of mind means when a person is not aware what is right, what is wrong. That's it. Mental illness is having so many categories.
and every category is having a different nature and gravity if it is related to the delinquency. कोई भी बच्चा अगर किसी दूसरे को मारता है, उसको काटने की आदत होती है या उसको बहुत ब्रूटली मारता है, तो हम सीधे कह देते हैं कि वो जानवर है, वो जानवर है, इसी को तरीका नहीं पता, हम उसको पनिश करते हैं. प्लीज़ डोंट डू दिस. उसको आप डॉक्टर के पास ले जाइए, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए. सो कमिंग टू व्हाट इज psychopathy, this particular term has been first stated by Checkley in his book Mask of Insanity. उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने परसेप्शन दिए अबाउट द साइकोपैथी, बट द मेजर वर्क हैज़ बीन डन बाय डॉक्टर हेयर and his associate, and he has established psychopathic checklist revised, and on the basis of that psychopathic checklist revised, the characteristics of the psychopathy or psychopaths is like the first major characteristics on which you can distinguish psychopathy with other mental illness is that the psychopath doesn't have any remorse or empathy towards anybody. उनको किसी भी तरीके का गिल्ट नहीं है, कोई रिमोर्स नहीं है. अगर वो कोई भी क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो उसमें उनको पहले तो समझ में ही नहीं आता है और उनको कोई गिल्ट नहीं है कि उन्होंने वो एक्ट किया, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग दैट इमोशंस. They are manipulative, they are liar, they are egocentric, they are having glibness, they are having low frustration tolerance, they are having episodic relationship, parasitic lifestyle, persistent violation of social norms. ये सारी characteristics हैं out of which you can identify that the person is whether a psychopath or any other mental disease. Now why I am telling you कि this type of overlapping is there. अब ओवरलैपिंग और डिस्टिंक्शन की बात में मैं इतना ज़ोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर आपको ओवरलैपिंग और डिस्टिंक्शन को नहीं माना, देखिए मैं फिर से एक चीज़ बोलती हूँ, आप सब जुडिशल फील्ड से हैं, मेजॉरिटी आर फ्रॉम जुडिशल बैकग्राउंड. वेन एवर यू हैव टू एस्टैब्लिश अ क्रिमिनल लाइबिलिटी इन अ कोर्ट रूम, नो मैटर इट ही इज़ अ चाइल्ड और अ एडल्ट, हमको क्या करना है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में मेंस रिया एंड एक्टस रियस पे हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं. मेंस रिया की हम बात करते हैं तो फॉर एवरी एक्ट, for every criminal act, whether it is action or omission, commission or omission, it is necessary that there must be a mens rea, and that mens rea should be something wrong, किसी criminal act के होना चाहिए. But when it is a case of a child psychopath or it's a case of any mentally ill criminal or offender or delinquent, then it is not, what is a mens rea? It is a disease. They are not aware what they are doing. So how come everybody could be treated in the same manner? Similarly, even if we say that if the distinction, why distinction is needed in unsoundness of mind or in any other mental illness, सिर्फ इतना कहना कि they are not having the ability at the time of the trial, even whether they are fit to stand for a trial or not. Secondly, at the time of the commission of the act, whether they are aware about the act they are doing or not. तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में तो वो नहीं करते. लेकिन अगर हम मेंसरिया को भी और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं तो मेंसरिया के भी आप सबको पता है 3 पार्ट है, दैट मोटिव, इंटेंशन एंड नॉलेज. तो इंटेंशन एंड नॉलेज इज देयर विद साइकोपैथ, दे वांट टू डू, दे वांट टू कमिट अ क्राइम, बट मोटिव इज मिसिंग. सो हाउ कम दे कैन बी कंसिडर्ड एज अ delinquent? So you have to look about all the scenario when you are talking about or you are framing a criminal liability to any person. And as far as the child is concerned, we have to be more cautious because not, हम बार बार बात कर रहे हैं, हमने जब निर्भया केस हुआ तो हमने JJ एक्ट में एज कम कर दी कि if any grievous act committed by any child of the 16 years of age, he could be treated as 18 years. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं. अगर मैं बाहर की बात करूं तो एक ब्रेंडा स्पेंसर का केस है. तो उस केस में ये हुआ था कि वो घर के एक अपोजिट रहती थी, सामने स्कूल था, एंड शी शूटेड ऑल द स्टूडेंट्स हु वर देयर, और बहुत छोटा सा स्कूल था. व्हेन इट वाज आस्क्ड व्हाई यू हैव शूटेड, तो शी सेड आई हेट मंडेज. दिस वाज द ओनली आंसर, आई हेट मंडेज. तो इससे वो चीज़ समझ में आई थी दैट शी वाज अ साइकोपैथ. इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में मैं ज़्यादा केसेस पे नहीं जाऊंगी. अमरदीप साडा का केस आपको पता होगा. अमरदीप साडा इज़ कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड्स यंगेस्ट
serial killer and a psychopath who is in India. He has killed 3 infants, including his sister and his cousin. उसने 3 महीने की अपनी बहन को मारा, उसने 4 महीने की अपनी कज़न को मारा, और उसी इन्फेंट में बिलो 1 ईयर उसने अपने पड़ोस के एक बच्चे को मारा. एंड व्हेन इट इज़ आस्क्ड ही वाज, वो हंस रहा था पुलिस ऑफिसर के सामने कि बस मुझे अच्छा लगा तो मैंने मार दिया. तो व्हाट आर दोज केसेस? इफ दिस टाइप ऑफ टेंडेंसी अ चाइल्ड इज हैविंग एट द एज ऑफ 8, इट इज़ अलार्मिंग. इट इज़ अलार्मिंग. लास्ट वीक में अभी एक रिपोर्टेड केस आया था, अभी तो रिपोर्टिंग ही हुई थी कि दैट बॉय हैज़ वॉच्ड अ पॉर्न मूवी एंड ही हैज़ अटेम्प्टेड रेप ऑन हर ओन सिस्टर एंड देन किल्ड हिम. और मदर ने उसको छुपाने की कोशिश करी. Now, which type of perverted mind or which type of disease these person are having? We cannot label them as a monster or animal or anything else. We have to identify what sort of disease they are having. Because if this type of tendency we are going to nurture and we are taking it for granted in a children, then it will be definitely a very bad society when they are going to grown up. जब वो अभी इस तरीके के क्राइम कर सकते हैं तो बड़े होकर क्या कहेंगे? तो एट दिस स्टेज ओनली इट इज़ द नीड ऑफ एन आवर टू स्टॉप दैम. नाउ द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वेन एवर दिस टाइप ऑफ इशूज आर prevalent in the society? First of all, lack of awareness. As I said, अभी तक यही नहीं पता है because of the overlapping of the behavior and the conduct of and similar कि हम साइकोपैथ, सोशोपैथ, नार्सिसिस्ट सबको एक ही बना देते हैं. तो ये एक अवेयरनेस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर डिसीज़ के अपनी एक ग्रेविटी होती है, अपना एक नेचर होता है, उस डेलिक्वेंट के पीछे अपनी एक स्टोरी होती है, एक वजह होती है. So we have to try to find out the causation of crime in a proper manner. What are the causes of crime? That is needed. तो एक ये चीज़ थी कि lack of awareness है. दूसरी ये चीज़ थी कि हमारे पास insufficient health infrastructure है. Even if they are find out, तो where they have to keep, कहाँ उन्हें रखा जाए इन बच्चों को. अगर हम जे एक्ट की बात करते हैं और अगर हम उनको ऑब्जर्वेशन होम या अभी हम जो इतना मेंटल इलनेस, मेंटल रिटार्डेशन या हम होम की बात कर रहे थे कि हम उसके अंदर रखते हैं, वेदर देयर विल बी ट्रीटेड एज कि वो कहाँ रख रहे हैं, जो भी चीज़ें. तो इफ दिस टाइप ऑफ डेलिक्वेंट आर केप्ट विद अ नॉर्मल डेलिक्वेंट, दैट विल बी टेरर एंड दैट कुड बी अ प्रॉब्लम फॉर दोज नॉर्मल डेलिक्वेंट वो हु आर अदरवाइज नॉट अ साइकोपैथ और एनी अदर, दे आर नॉट सफरिंग विद अ मेंटल डिसीज़. तो उन्हें कहाँ रखा जाए? तो ये एक और प्रॉब्लम है. दूसरा, लोग सोसाइटी में स्टिग्मा से डरते हैं, तो स्टिग्मा के वजह से भी लोग नहीं बोलते हैं. फिर तीसरा, हमारे साथ लीगल और पॉलिसी गैप बहुत ज़्यादा है. हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से, आज मैं खुश हूँ कि यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे मुझे ये चीज़ बोलने का मौका मिल रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनली साइकोपैथ बिहेवियर पे PhD भी करी है और मैंने बुक भी लिखी है, साइकोपैथ बिहेवियर अ नीड फॉर अ थेरेपेटिक अप्रोच, विच इज़ पब्लिश्ड बाय थॉमसन र्यूटर्स. और उसमें जब व्हेन आई वाज डूइंग माय PhD, आई हैव इंटरव्यूड मैनी पुलिस ऑफिसर, मैनी डॉक्टर्स, मैनी साइकेट्रिस्ट, एडवोकेट्स, जजेस, एंड आई एम सॉरी टू से किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि जब आपके पास साइकोपैथ आता है तो आप कैसे डील करते. ना मुझे किसी एडवोकेट ने सफिशिएंट आंसर ने बोले कि नहीं, लॉ में तो लिखा ही नहीं है तो हम नहीं करते. इसी तरीके से जजेस के जब लिखा ही नहीं है तो क्या करें, तो ये एक और प्रॉब्लम आती है. तो जब ये सारे इशू आते हैं तो द सजेशन, द रिकमेंडेशन विच आई सजेस्ट इज़ दैट everything starts from the family. So awareness, a proper awareness should be given to the parents that there must be, if you identify any perverted thing in your child, please be aware, go to the doctor. Secondly, whenever there is a delinquent case, first it is the first hand information goes to the police officer. They should be trained properly and they should be made aware about the mental diseases, which is mental illness or a mentally ill criminals and the variety of that. Similarly, it should be included as a subject in law in the institution, so that जब हम पढ़ेंगे नहीं तो हम कोर्ट में लड़ेंगे कैसे और डिसीजन देंगे कैसे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है, ये बताया ही नहीं गया, एड्रेस ही नहीं किया. तो देयर मस्ट बी अ सेपरेट करिकुलम
एडवोकेट्स और जजेस की भी इस तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए सो दे कैन अंडरस्टैंड द वेराइटी ऑफ दैट. सिमिलरली हमको अपना स्ट्रेंथन करना चाहिए मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी. इसके अलावा सोसाइटी में ये चीज़ की अवेयरनेस भी देना चाहिए दैट इट इज़ नॉट अ स्टिग्मा. दिस इज़ समथिंग विच यू आर हेल्पिंग not only your child but to the society as well. If you are finding within your family or nearby or any other acquaintance, please be report. Do report ताकि आपके अलावा उसकी भी हेल्प हो और सोसाइटी की हेल्प हो. And the lastly, there must be a therapeutic approach. We should look them empathetically. Why I'm telling you? Because they are not looking us empathetically, but I want to look them empathetically because they are not aware. They are whatever crime they are doing, it is because of the disease. The mens rea is disease. No revenge, no lust, no jealousy, no other thing. It is only disease. So these type of things should be flagged on, it should be discussed, it should be added in the training program, in the curriculum and everything. With these words, thank you and thank you for calling me and thank you for this. Thank you. Thank you, ma'am. Our next expert is Ms. Shubham Thukral. Let me introduce her. She is a senior scientific officer and coordinator of the Center for Happiness and Well-being at NFSU, National Forensic Sciences University, Gandhinagar campus, which is an institute of national importance. She works closely with DCPUs and JJBs in Gujarat. She has worked towards ensuring compliance to the Rights of Persons with Disabilities Act and National Human Rights Commission mandate. I request ma'am to share her experiences. Ma'am, please. Keep it time. Good evening, everyone. It's my pleasure to represent my university at such a prestigious occasion. कुछ 5 मुद्दों के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी. पहला मुद्दा ये है, सोसाइटी, गवर्नमेंट और बच्चे की मेडिकल और मेंटल इलनेस, इस त्रिकोण में बच्चे को केंद्र बिंदु बना के चलें. जो भी मैं बोलूँ उसको उस परिप्रेक्ष्य में लें. राइट. सुबह हमने बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस सुने हैं पेरेंट्स से, जहाँ पे पेरेंट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरे बाद बच्चे का क्या, मेरे जाने के बाद बच्चे का क्या. आप और मैं, हमारे जब पेरेंट्स, जब हम बड़े हो रहे थे, 2-3 साल के बाद हम उनकी गोद से निकल के चलना शुरू कर दिए थे, बोलना शुरू कर दिए थे, स्कूल जाना शुरू कर दिए थे. हमारे कुछ होप्स थे, कुछ एस्पिरेशंस थे, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए थे. जो बच्चे हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ हैं, वो बच्चे बहुत लंबे उम्र तक अपने माँ बाप के साए में ही रहते हैं. हमारे माँ बाप जो नॉर्मल हैं, सो कॉल्ड नॉर्मल लोग हैं सोसाइटी के, कुछ समय के बाद हमारी चिंता करना थोड़ी कम कर देते हैं. 17-18 के बाद क्लियर हो जाता है कि हमने कौन सा एरिया लेना है, हमारा क्या चॉइस है, हम पायलट बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या साइकोलॉजिस्ट बनेंगे. जो बच्चे डिसेबिलिटीज़ से डील कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स ताउम्र ये डिसाइड करने में लग जाते हैं कि इनकी सिक्योरिटी कैसे हो, इनकी सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाए. उनके जीते जी तो उनके बच्चे उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहते ही हैं. अपने मरने के 20-20 साल तक के बाद की वो प्लानिंग करके जाना चाहते हैं. फाइनेंशियली मेरा बच्चा सेफ़ रहे, मेरे बाद किसी और कस्टोडियन के साथ रहे, मेरे बाद उसको लीगल कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरे बाद उसको इमोशनल कोई इशू ना आए. तो काउंसलर होने के नाते मेरा दायित्व सिर्फ इतना सा नहीं है कि मैं उन बच्चों के ऊपर फोकस करूं. ऑफ कोर्स वो मेरा प्राइमरी मोटिव है, परंतु काउंसलर होने के साथ साथ मेरा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि मैं फैमिलीज़ के बर्नआउट, फैमिलीज़ के बर्डन को एड्रेस करूं, जो कि इन सिस्टम्स के अंदर, स्पेशली जो टॉपिक मुझे दिया गया है, चाइल्ड सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, के अंदर बहुत ओवरलुक्ड मैटर है. जैसे कि मॉर्निंग में ऑनरेबल जस्टिस आनंद पाठक एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये क्लास विद इन क्लास है. आप सोचिए, इनके पेरेंट्स या इनके अभिभावक जो हैं वो क्लास विद इन क्लास हैं. सो इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट टू रीच टू फैमिलीज़ टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट सच चिल्ड्रन. सुबह एक बच्चे ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि मैं आई वॉन्ट टू फ्लाई, आई वॉन्ट टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड.
मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, आप एक सूक्ष्म तरीके से सोचें तो क्या ये हम सभी के होप्स एंड एस्पिरेशंस नहीं हैं? इसमें डिसेबिलिटी का फैक्टर कब काउंटर इन होता है? जब फिजिकल बातें आती हैं, जब दुनियादारी आती है, जब आपको सोसाइटी से डील करना पड़ता है। अंतर मन में जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी चाहता है और जो एक पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी चाहता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज वो सेम चीज़ ही होती है। यहाँ पे इस बात की भी बहुत चर्चा हुई है कि जो बच्चे कानून के साथ विवाद में पड़ते हैं, क्या उन बच्चों को ये समझ में आता है कि उन्होंने क्या किया है? ऑफ कोर्स आप जब प्रीलिमिनरी असेसमेंट्स करते हैं या फॉरेंसिक इंटरव्यूज़ लेते हैं, जब बच्चे से आप पूछते हैं कि तुमको पता है तुमने खून किया है, वो गलत है, बच्चा बोलेगा हाँ मैंने खून किया है, वो गलत है। क्या वो आपको सच में जवाब दे पा रहा है कि जो उसने किया है उसे समझ है उस बात की? खून करना गलत है, शायद उसे वो समझ में आ सकता है, बट एग्जैक्टली खून करने का क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या वो आपको समझा पा रहा है? सो कुछ ये चैलेंजेस हैं जो हम देखते हैं जब सोशल वर्कर्स या काउंसलर्स जो लीगल सिस्टम में हैं, प्रशासन में हैं, जो डिसीजंस वो बच्चों के लिए लेते हैं जब बच्चे इनके साथ होते हैं, दैट हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन दीज चिल्ड्रन। जब ये डिसीजंस इनएक्यूरेट होते हैं, या तो उनके फॉल्टी अजम्पशंस की वजह से या फिर लैक ऑफ एविडेंस या बेसिक इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो इस हाल के अंदर जो एरर्स बनते हैं, जैसे कि कुछ एरर्स मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी प्रैक्टिस में जो मैं देखती हूँ। एरर्स इन डिस्क्रिप्शन के बच्चे के जो अब्यूज्ड बच्चा है उसके साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है उसको स्टेट करिए। दूसरा एरर, एरर्स इन प्रिज्यूमिंग द एक्सटेंट ऑफ कोवेरिएशन एंड कॉजालिटी। जब भी काउंसलर्स या अधिकारी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ डील करते हैं, ड्यूअल एटियोलॉजी है वहाँ, मेडिकल एटियोलॉजी भी है और मेंटल इलनेस की एटियोलॉजी भी है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, इंटरनलाइजिंग प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नलाइजिंग प्रॉब्लम्स हैं, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है, सेल्फ म्यूटिलेटिंग बिहेवियर है। इस तरह की हमें प्रेजेंटेशंस दिखती हैं। इस चीज़ को अज्यूम कर लेना कि कोई बच्चा जो अब्यूज़ हुआ है वो आगे जाके किसी और को भी अब्यूज़ करेगा क्योंकि वो अग्रेसिव है, वो काउंसलिंग के अंदर अग्रेसिव प्रेजेंट कर रहा है, ये भी एक बहुत गलत एजम्पशन है, एरर है इन जजमेंट ऑफ काउंसलर्स दैट वर्क क्लोजली विद चिल्ड्रन। द नेक्स्ट एरर दैट वी ऑब्जर्व इज एरर्स ऑफ ओमिशन, overlooking the strengths and resources that a child with disability has and focusing entirely on the maladaptive behavior. Of course हमने बहुत बार प्रैक्टिस में ऐसा देखा है, जो बच्चे सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस होते हैं उनके अंदर कुछ टिपिकल बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अग्रेशन आप नोट करेंगे, बहुत कॉमनली ऑब्जर्व्ड बिहेवियर होता है। सो अग्रेशन के अलावा उस बच्चे के क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उस बच्चे का क्या वैल्यूज़ हैं या उस बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इसको एक्सप्लोर नहीं किया जाता है। अक्सर जब हमारे पास रेफरल्स आते हैं वो इस पड़ाव पे आते हैं जहाँ पे 5-6 महीने सलंग बच्चे के साथ इंटरेक्शन तो होता है, बट उसके जो कोर प्रॉब्लम्स हैं, उसके जो कोर फीचर्स ऑफ डिसेबिलिटी प्लस फीचर्स ऑफ मेंटल इलनेस हैं, वो एलिसिट नहीं किए जाते हैं प्रॉपरली, जो और एग्रेवेट होते चले जाते हैं समय के साथ। अभी कुछ समय पहले एडवोकेट अस्थाना ने कहा था कि जब बच्चे के साथ कोई क्राइम कमिट होता है या वो किसी वायलेंस का रेसिपिएंट होता है, उसके कुछ समय के बाद उसके अंदर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा स्लाइडली डाइग्रेस करूँगी इस टॉपिक से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे अक्यूट रिएक्शन टू स्ट्रेस, अक्यूट रिएक्शन टू दैट वायलेंस बच्चे के अंदर देखने को मिलता है। तो इस सिनेरियो में 6 महीने इंतज़ार, 3 महीने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली आपको दिखता है कि हादसा होने से पहले बच्चा कैसा था और हादसा होने के इमीडिएटली बाद बच्चे की किस तरीके की मनोस्थिति है। इसके अलावा एरर्स इन प्रिडिक्शन, प्रिडिक्टिंग दैट इनसाइड थेरेपी विल प्रिवेंट अ पर्टिकुलर वुमन फ्रॉम अब्यूजिंग हर चाइल्ड अगेन वेयर एज इट डज नॉट प्रूव टू बी ट्रू। बहुत केसेस में ऐसा होता है, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ होते हैं, बहुत रियल चैलेंजेस की वजह से, उनके फैमिली मेम्बर्स बर्नआउट की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों के ऊपर अपना जो कह सकते हैं एक तरह से अग्रेशन या अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो निकालते हैं, और ये कंपाउंड कर देता है प्रॉब्लम को, क्योंकि ये सुधार की दिशा में नहीं जा रहा है, ये विपरीत दिशा में चला जाता है। तो इन सब मुद्दों की वजह से जो हेल्प बच्चों को चाहिए वो नहीं मिलती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनकी हालत डिटीरियोरेट होती है सिस्टम के अंदर। असेसमेंट के अंदर भी हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस देखी हैं, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अंदर ऑब्जर्वेशंस देखी हैं।
हमारे पास ऐसे बच्चे रेफ़र होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, लेकिन सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्रिमिनल माइंडेड बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर, इन सब शब्दों का यूज़ किया जाता है। तो जब हम काउंसलर्स या प्रोबेशन ऑफिसर्स से ठंडे दिमाग से बात करते हैं कि आपका मतलब क्या है इस चीज़ से, तो अक्सर वो इन लाइंस के साथ सामने आप हमारे सामने आते हैं कि नहीं वो मैडम वो पड़ोसी ने ऐसा बोला था। तो मैंने कहा आप बच्चे के साथ 10 दिन 15 दिन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा उसने कौन सा क्रिमिनल बिहेवियर आपको एग्जिबिट कर दिया जो आप मुझे आके ये कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल बिहेवियर का है। तो बच्चे को लेबल कर देना, उसकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटी को, उसके फ़िज़िकल हैंडीकैप को ओवरलुक कर जाना, उसको ओवरलुक करने के बाद जब उसके मेंटल कंडीशंस से हम उनको परिचित कराते हैं तो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट से बात करना कि हम इनके लिए प्रावधानों के द्वारा इतना कुछ कर तो रहे हैं, अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे। तो इस तरह का कुछ हमने कुछ टाइप के बिहेवियर्स नोटिस करे हैं जो कि जिनको हम समझते हैं कि जिनको सुधार की ज़रूरत है। मनोवैज्ञानिक होने के नाते मुझे उतना सरोकार सरकार में जाके, जेजेबी में जाके बच्चे को डिफेंड करने से भी है, जितना सरोकार मुझे इस बात से है कि जो काउंसलर मेरे पास सीएनसीपी के बच्चों को लेकर आ रहे हैं वो बच्चे के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, वो किस तरीके के शब्दों का बच्चों के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक कहावत है, शब्द शब्द सब कहें, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे 100 घाव। जो बच्चे के साथ लगातार परस्पर बात कर रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं, उनके शब्दों का प्रभाव, उनके व्यवहार का प्रभाव बच्चे पर ज़रूर होता है। तो जिन बच्चों के अंदर किसी तरीके की डिसेबिलिटीज़ हैं वो अपनी बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेशन के एरर्स होते हैं, कम्युनिकेशन के बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं वो बच्चे फिजिकली भी, इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग भी, विद देयर इंटीमेट केयर गिवर्स। इन प्रोसेसेस के अंदर बच्चों के साथ बहुत सम्मान और इज़्ज़त के साथ डील किया जाए, ये हमारी कोशिश रहती है। इस दिशा के अंदर स्पेशली नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी अग्रसर है। जिस भी स्तर पे हमें बोला जाता है कि आप इंटरैक्ट करिए, हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें, सेंसिटाइजेशन क्रिएट करें कि जो शब्द बच्चा कह रहा है, जो शब्द या जो आंसू या जो व्यवहार बच्चा दिखा रहा है और जो उसके मायने आप समझ रहे हैं, इनके बीच का जो संबंध है इसको अपने पर्सनल वेरिएबल्स की वजह से कमज़ोर ना करें। इन दोनों बातों के बीच का संबंध मजबूत होना चाहिए, जो शब्द या जो व्यवहार बच्चा दिखा रहा है और जो उसके मायने निकल के आ रहे हैं, इन दो चीज़ों के। जो जेजे एक्ट है उसके कुछ गाइडिंग सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, पार्टिसिपेशन, बेस्ट इंटरेस्ट, पॉजिटिव मेजर्स, ऑल टू बी टेकन इन फेवर ऑफ द चाइल्ड। जब हम थेरेप्यूटिक काम बच्चों के साथ करते हैं तो थेरेप्यूटिक प्रोसेस के अंदर रैपो इस्टेब्लिश करना, यानी कि बच्चे के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, उसके ट्रॉमा को एक्सप्लोर करना, नेचर ऑफ ट्रॉमा क्या है, डेप्थ ऑफ ट्रॉमा क्या है। एक बच्चे के साथ अगर कोई कुकर्म होता है, उस कुकर्म का उस बच्चे के जीवन के कौन से क्षेत्र में किस स्तर तक प्रभाव है, इसका मैं समझती हूँ प्रमाण इसका निकाल पाना या इसका आंकलन कर पाना, स्पेशली जब हमारे पास दिव्यांग बच्चे हैं, बहुत कठिन हो जाता है। तो ट्रॉमा को एक्सप्लोर करना, ट्रॉमा को डायग्नोस्टिक इंटरव्यूज़ के थ्रू एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैं समझती हूँ कि जो फर्स्ट लेवल रिस्पॉन्डर्स हैं, जो फर्स्ट कॉन्टैक्ट में हैं बच्चे के साथ, जो काउंसलर्स हैं या जो पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों के लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अंत में जब हम एक सेक्सुअल वायलेंस के सर्वाइवर की बात करते हैं, अंत में हम ये नहीं चाहते हैं कि उसको सरकार के प्रावधानों के अनुसार उसको जस्टिस मिले, उसके साथ साथ हम बीइंग काउंसलर्स ये चाहते हैं कि एक रिपेयरिंग ऑफ सेंस ऑफ सेल्फ हो। अगर किसी की बॉडी वायलेट करी जाती है, अगर किसी को सेक्सुअल ऑफेंस किसी के साथ होता है, द अल्टीमेट गोल इज़ yes to provide justice, I'm going to concur to that fact, but what beyond justice, it is repairing or reclaiming the sense of sexuality, whatever that may be in that child. If it is a child of learning disabilities, it becomes even more difficult for the child to explain. Let's not rule out the disabilities in which children can speak. Let's not rule out the disabilities in which children have the capacity to understand what is going on. Certain neurological disorders which are often overlooked, like attention deficit hyperactivity disorder है, जैसे learning difficulties हैं, जैसे autism है, ये जो pervasive developmental disorders हैं,
इनके साथ साथ जब कोई क्राइम कमिट हो रहा है, अंत में हम ये चाह रहे हैं कि बच्चे का सेंस ऑफ सेल्फ रिपेयर हो। एक साइकोलॉजिस्ट इस एरिया के अंदर काम करता है, उसकी सेंसिटिविटी इस एरिया के अंदर है, और यही हम लोगों का भी उद्देश्य रहता है कि जिन भी ऑफिसर्स की हाल ही में अभी NFSU ने शौर्य दीदी की ट्रेनिंग कंडक्ट करी है, उसमें भी हमने इसी दिशा में कोशिश करी है कि बच्चा जो है उसकी तरफ सेंसिटाइजेशन को इंक्रीज़ कैसे किया जाए, फ्यूचर क्या है उसको ये समझाया जाए। मैंने आज तक अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा है किसी बहुत बड़ी ट्रेजेडी के बाद जो अपनी जीवन का मीनिंग ना ढूंढे। एनीथिंग दैट हैज़ मेजरली हैपेंड इन योर लाइफ, आप कोविड का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब भी ज़िंदगी में जीवन में कुछ भी बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है, उसके बाद जब आप ग्रीफ से गुजर रहे होते हैं, ज़िंदगी में आप मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं लाइफ में, काउंसलर्स का रोल इस पड़ाव पे है। उस बच्चे का मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, उसके माँ बाप जो ऑलरेडी उसके लिए चिंतित हैं, उसके अभिभावक जो ऑलरेडी उसके लिए चिंतित हैं, उनको किस तरीके से साहस दिया जाए, बांधा जाए उनका साहस, किस तरीके से उनको संबोधित किया जाए कि वो समझें कि हम उनके साथ हैं, ना कि इन ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो हमारी तरफ से एंटाइटलमेंट प्रोजेक्ट करता है। तो बेसिकली हम लोग जो डिपेंडेंस है बच्चों की उसके ऊपर काम करते हैं, और जो बच्चों के कम्युनिकेशन एरर्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। एक सुझाव मैं ये देना चाहूँगी कि क्योंकि हम शौर्य दीदी का इनिशिएटिव हमने लिया ही है, तो अगर हम स्मॉल सेक्शंस जहाँ पे ये फोर्स जा रहा है, अगर उन स्मॉल सेक्शंस के अंदर हम कम्युनिटी लैब्स डेवलप कर पाएँ, जैसे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कितने इफ़ेक्टिवली आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं अपना इन्फॉर्मेशन, अपनी ट्रेनिंग, उसको एक कन्फाइंड तरीके से कम्युनिटी लैब के बेसिस के ऊपर चेक किया जाए। I think that would be more concrete. Of course, we can cover the whole state in this, but to understand precisely how the work of a counselor or a therapist goes about in the process of reclaiming, especially the sexuality aspect of children, we have to be even more precise with understanding कि हमें पता है कि रैपो इस्टेब्लिश करनी है, थेरेपी देनी है, थेरेपी के बाद थेरेपी का फॉलोअप करना है, पेरेंट्स का ध्यान रखना है, क्रम हमें पता है। जब केसेस लाइक चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी होते हैं तो अक्सर हम लोग प्रैक्टिस में ये देखते हैं कि क्रम ज़रूरी है, लेकिन क्रमबद्ध होना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें हम एक स्टेप बाय स्टेप किसी नॉर्मल केस के अंदर देख सकते हैं, हो सकता है कि जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, ड्यूअल एटियोलॉजी की वजह से हमें थोड़ा वक्त लगे उस चीज़ को समझने में, हो सकता है हमें मल्टीपल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़े, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं अचीव किया जा सकता। इसमें मल्टीपल लोगों की ज़रूरत पड़ती है। लाइक आई सेड, बच्चे को आप एक त्रिकोण के केंद्र बिंदु में रख के देखें, एक तरफ उसकी इलनेस है, एक तरफ समाज है या समाज के जो भी लोग हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, और तीसरी तरफ उसके प्रशासन है। सो एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन ओनली सम इट अप इन दीज थिंग्स without taking much of your time. There has to be an explicit commitment to child protection in whatever way you are implementing it, and we have to understand that किसी भी बच्चे के साथ अगर सेक्सुअल वायलेंस होती है या किसी भी बच्चे के साथ किसी भी तरह की वायलेंस होती है, सबसे पहली चीज़ जो उसकी ज़िंदगी से जाती है वो है ट्रस्ट। वो ट्रस्ट करना छोड़ देते हैं। तो उस ट्रस्ट को बिल्ड कैसे करना है, ट्रस्ट वर्दी कैसे बनना है, I think maybe clinical psychologists can be helpful in these areas because they work on evidence-based approaches, scientific practitioner approaches to inculcate building trust and also to modify the general counseling skills with respect to children with disabilities. That's about it. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. I request Honorable Lordship, if you want to share something before Yes, concluding this session, sir, please. Yes, in this session, we have heard the presentation of the experts addressing child psychopathy challenges and solutions. We have tried to understand how we can operationalize various legal entitlements and support services for children with disability within our juvenile justice system. For example, we know that in every district we ought
to have sign language experts, legal aid lawyers, psychosocial experts, support persons, and such other child protection workforce who can support children at JJB, CWC, SJPU, or POXO courts when children with disability are produced. Just think of a situation where the investigating police officer cannot interact with the POXO survivor because of his or her inability to speak. How would that child receive the justice? In fact, that is the reality in most of our districts. Our child protection workforce is not sufficient to cater the demands, as well as their salaries are also very low. For this, the key department, that is the Women and Child Development, is responsible to make these legal and policy provisions into reality. The child protection workforce needs to be systematically trained and skilled to deal with the children, including those with disabilities, so that their needs and issues are addressed justly. Therefore, I would request all these stakeholders to take care of all these eventualities which are lacking. Thank you very much. Thank you, Lordship, for your kind words. Now I seek permission to close this session, Lordship. Session declared closed. There has been a suggestion from my lord that we'll take this session, last session, tomorrow at 9:30 a.m. So I expect you to come on time. लंच पोस्ट लंच आप लोग बहुत देर से आए, कल उम्मीद करते हैं आप लोग बिफोर टाइम यू विल कम. लॉर्डशिप जी, आप सभी से आग्रह है, जो आपके अनुभव हैं, हमारे पास सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, ऑनरेबल्स भी हैं. इनफैक्ट आई रिक्वेस्ट लॉर्डशिप इफ यू प्लीज. मैडम शुभम ने एक बहुत अच्छा प्रपोजल दिया है कम्युनिटी लैब का. इस कम्युनिटी लैब को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका कुछ रोड मैप है क्या आपके पास? कुछ जैसे क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स हैं यहाँ पर, पुलिस भी, WCD भी है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस भी है. या तो आप इसका कुछ एक रोड मैप हो, और या फिर आगे उसका कुछ थोड़ा थ्योरेटिटाइज करके उसको आप एक रोड मैप दें, ताकि अगर ये एक सजेशन है जिसको हम भेज सकते हैं आगे. Ma'am, if you want to say something, you can use that mic. Okay, yes, sir. I would definitely share the roadmap with you in consultation with the center's head, Professor Asha Srivastav. She's been working since 35 years in the field of forensic psychology, and she's examined many cases. So I would just take help of her expertise. I already have a little bit of agenda in my mind in this regard, that एक्चुअली ये जो शौर्य दीदी का जो पूरा इनिशिएटिव था, इस इनिशिएटिव से मैंने एक चीज़ सीखी कि अगर इन चीज़ों को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखा जाए और उसके रिजल्ट्स लिए जाएं, सो बेसिकली इसको अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में देखें तो ये कम्युनिटी लैब्स ही हैं. सो सोशल साइंस, क्योंकि NFSU हैज़ ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोचेस, क्रिमिनोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी हैं, न्यूरोसाइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स भी हैं वहाँ पे, फोरेंसिक साइकोलॉजी के भी हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के भी हैं. तो उनका इनपुट अलॉन्ग विद जो नीड ऑफ द स्टेट है, उसके अकॉर्डिंगली एक कम्युनिटी लैब का प्लान डेफिनेटली हम लोग तैयार कर सकते हैं. हमारी JJ कमेटी जो है, मलिक साहब, मिस्टर समरेश, ये आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वो शौर्या दीदी के लिए भी एक आप पूरा उसका एक ट्रेनिंग रेजिमेंट या ट्रेनिंग क्यूरिकुलम बन जाए, और इसके लिए जो कम्युनिटी लैब के लिए भी, तो इट वुड बी अ गुड थिंग फॉर PWDs. थैंक यू लॉर्डशिप. देखिए, संवाद डायलॉग के लिए यूज़ होता है. अगर अभी मोनोलॉग था, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, लॉर्डशिप का ये सुझाव है कि हम लोग, हमारा डिस्कशन कुछ हो, आपके सुझाव हो तो प्लीज़ आप लोग, प्लीज़ माइक ये अवेलेबल है, आप लोग अपने व्यूज़ रखें. कोई आपको कुछ प्रश्न हो मन में? मैं थोड़ा सा पॉक्सो एक्ट के संबंध में बोलना चाह रहा था कि जो पॉक्सो एक्ट के विक्टिम और सर्वाइवर्स रहते हैं, उनको एक सपोर्ट पर्सन प्रोवाइड करना एट इनिशियल स्टेज जो है वो मैंडेटरी है. रूल्स में उसके संबंध में फॉर्म्स भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं, फॉर्म A और B.
पर वो सपोर्ट पर्सन्स जो है अभी जो प्रारंभ किया गया है हमारे द्वारा, वो जो PLVs हैं, पैरालीगल वॉलेंटियर्स हैं, सर। उनको जो है वो अपॉइंट किया जा रहा है, पर उनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो अगर PLVs को जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा NFSIU के द्वारा अगर ट्रेन किया जा सके, उनकी एक्सपर्टाइज अगर हमको प्रॉपर वे में मिल सके तो वो भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर कोई ऐसा क्यूरिकुलम या कुछ ऐसा डेवलप हो सके कि जिसमें PLVs को पॉक्सो एक्ट या उसके संबंध में जो है वो ट्रेंड करके और उनको उनकी सेवाएं जो है हम और यूज़फुल तरीके से थाने और उन सब विक्टिम्स जो हैं पॉक्सो के सर्वाइवर उनके लिए यूज़ या यूटिलाइज कर सके तो और बेहतर रहेगा। मैम I assure Lordship, we will take these two suggestions. I request others also to participate. Please, आप अपनी बात रखें. And that too, it should be relevant with our discussion, please. अनुराग पांडे, बाल आयोग मध्य प्रदेश से हूँ। जैसे कि बात हुई सपोर्ट पर्सन की, समरेश जी ने बहुत बढ़िया बात कही, सपोर्ट पर्सन होना चाहिए। पर अभी एक जो गैप हम लोग हर जिले में देखते हैं कि जो पुलिस के पास केस रिपोर्ट होते हैं वो CWC के पास जाते ही नहीं है, तो सपोर्ट पर्सन की नियुक्तियाँ नहीं होती। अगर परसेंटेज बेसिस पे भी देखें तो 10% से ज़्यादा केस नहीं जा रहे हैं लगभग हर जिले में। तो इसके लिए सभी लोग यहाँ पर हैं, आप भी हैं, अगर आप सर इसके लिए एक बार कोई ना कोई आदेश उनके लिए पारित करें, उनको कंपलसरी करें, क्योंकि हम लोग तो बाउंड करते हैं, लेटर भी लिखते हैं, पर ये चीज़ बाउंड नहीं हो रही है तो सपोर्ट पर्सन नियुक्त नहीं होते। वो लोग काउंसलिंग में एक लाइन लिख देते हैं, सपोर्ट पर्सन की आवश्यकता नहीं, और इस चीज़ को ख़त्म करके कोर्ट में पहुँचा देते हैं। तो ऐसा ना हो, कंपलसरी हो, ताकि बच्चों को और अच्छे से न्याय मिल पाए और हम लोग उसके लिए बहुत कुछ कर पाएँ। We have dedicated documenters also who are sitting. You might be taking everything, no ma'am? Okay. I request others. हाँ मैम प्लीज़. नमस्ते सभी को, मेरा नाम राशि है और मैं भोपाल से मुस्कान संस्था से हूँ। मेरा क्वेश्चन शुभम मैम के लिए है। जैसे कि वो साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी बात कर रही थी, तो एक मेंटल हेल्थ एक्ट में हम देखते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है, कंसेंट की बात होती है। जब वही चीज़ पॉक्सो सर्वाइवर के ऊपर हम देखते हैं तो उस तरीके से कंसेंट नहीं मिल पाता है। तो उस चीज़ को आप कैसे लेते हैं, फिर कैसे आगे ले जाते हैं कि मैंडेटरी रिपोर्टिंग हो और सारी चीज़ें उसी तरीके से फॉलो हो पाए? मैम देखिए, व्हेन इट कम्स टू मैंडेटरी रिपोर्टिंग अंडर पॉक्सो, द लॉ इज़ वेरी क्लियर दैट वी हैव टू रिपोर्ट, but in certain circumstances there are families who do not want to report, or there are families who understand that maybe किसी ना किसी रीज़न की वजह से I mean जो accused है वो किसी तरीके से हमें तंग करेगा, प्रताड़ित करेगा, या फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस की वजह से भिन्न कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चे रिपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, उनकी फैमिलीज़ नहीं रिपोर्ट करना चाहते हैं। सबसे मेजर कारण जो हम देखते हैं वो ये है कि स्टिग्मा या लेबलिंग, हमें हमारी सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं एड्रेस करेंगे। सो इन दिस केस वी टेक द इन्फॉर्म्ड कंसेंट ऑफ द चाइल्ड ऑल्सो, एंड देर आर सर्टन स्टेप्स दैट वी फॉलो इन मैंडेटरी रिपोर्टिंग. It's not a 1 or 2 step procedure where we take good around 6 to 7 steps where we are educating the child about what their rights are. We are telling them what it means to report. We are also providing them assurance regarding every step of the way that there will be somebody to help the child out mentally in mental aspects. We are also trying to understand the family's apprehensions, right? But yes, I understand it's a very difficult process. But however, mandatory reporting also has certain stages which are followed. There's a protocol for mandatory reporting which is followed. Okay. Thank you, ma'am. We are having officers also, as later on I will come to you. मैं भी कुछ कहना चाह रहा था। Please sir. जैसा कि शुभम जी ने बताया, जो स्टिग्मा है वो एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसा अभी 2 दिन पहले ही अगर हम सब लोगों ने अखबार पढ़ा होगा तो सतना में एक केस हुआ जहाँ पे वो एक बच्ची जो पॉक्सो विक्टिम थी वो कोर्ट में बयान देना चाहती थी, उसका पूरा परिवार उसको घसीट के कोर्ट से बाहर ले गया और उसको बयान देने नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, जहाँ सोसाइटी एक बहुत बड़ा ऐसा वो है जो अगर आगे आए और हम सब लोग थोड़ा जागरूक हों तभी पॉक्सो विक्टिम के साथ कुछ बेहतर हो सकता है और उनके लिए हम बेहतर कर सकते हैं। Sir, we are having participant judges also. Lordship, please. एक क्वेश्चन और था मैडम सिपाहा से कि ये जो आपने जो कि साइकोपैथ्स का कहा, इसी कंटिन्यूएशन में कई ऐसे चाइल्ड जिनको कहें जो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ हैं जो NDPS में इन्वॉल्व हो गए हैं।
जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं या जो उस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं जो कि बियॉन्ड देयर कैपेसिटी या जो जहाँ वो एक मोहरे की तरह यूज़ किए जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए उसको कैसे क्लासीफाई करेंगे? कई टेररिज्म में देखिए कई जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं वो 14 साल के बच्चे के हाथ में क्लाशनिकोव दे के वो उससे बॉम्ब ब्लास्ट करा रहे हैं या अटैक करवा रहे हैं। कई जगह बड़े एनडीपीएस के बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स कैरियर के तौर पे इनके थ्रू भेजे जा रहे हैं। तो ये क्या चाइल्ड साइकोपैथी है या इंडॉक्ट्रिनेटेड टू द हिल्ट है या क्या ये क्या मेंटल डिसऑर्डर है, क्या इसको कहेंगे? एंड हाउ दे शुड बी व्यूड? सर देखिए सर, जब हम क्रिमिनोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कॉजेशन ऑफ क्राइम होता है, तो उसमें कॉजेशन ऑफ क्राइम में देयर आर वेरियस कैटेगरी. What is the reason behind a crime? That has to be identified whenever we are labeling anybody criminal. So it may be related to psychology, that there might be psychoanalytic approach या जिसकी वजह से वो कर रहा है. It may be because of the economic reason. It may be because of the social reason. It may be a peer group pressure or a poverty. ये सारी चीज़ें हैं. So when there are these type of cases of NDPS or terrorism or anything, we have to look after about the motives. What is the main reason behind that particular thing? That could be varied. वो कोई भी और चीज़ हो सकती है या अंडर प्रेशर भी हो सकता है. कई बार लोग फ़न के लिए भी कर देते हैं कि किसी ने बोला कि ये चीज़ करके आ जाओ, वहाँ बम फोड़ कर आ जाओ. उसको पता भी नहीं है ये चीज़, वो चीज़ नहीं समझ पा रहा है कि वो जो बम है उसकी सीरियसनेस कहाँ तक है. तो ये भी कई बार होता है कि कई बार सिर्फ हम एक कंपटीशन में भी जाके बच्चे क्राइम कमिट कर देते हैं और उसके बाद उनको पता नहीं रहता है कि व्हाट इज़ द सीरियसनेस ऑफ दैट क्राइम. तो एट दैट पर्टिकुलर एज इफ़ द चिल्ड्रन इज़ बीइंग अवेयर कि what are the activity they are doing, whether it is right or wrong, that has to be some initiative has to be taken by the government कि जो ऐसे बच्चे हैं जो neglected child हैं जो या जो इस तरीके के जो जे एक्ट में सारी कैटेगरीज मेंशन्ड है, उनमें अगर इस तरह के कोई भी जिसे कहना चाहिए बिहेवियर दिख रहा है जो विच कैन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ एनी ऑफेंस, तो दैट शुड बी टेकन केयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम. So the variety could be anything. It could be social, psychiatric or any other thing. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Sir, we have principal magistrates also from JJB. Anybody who wants to contribute, sir? Ma'am, आप कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहें तो this is proper forum. Anybody? दूसरे लोग भी अगर कुछ कहना चाहें तो प्लीज़. मेरा क्वेश्चन प्रिया मैम से है. मैम, एज आई एम फ्रॉम द एजुकेशनल फील्ड, आई एम डीलिंग सम चिल्ड्रन हु आर हाईली एक्टिव and also they are very notorious. Sometimes what happens, they are doing some bad things, some bad activities when we are going for their families. The family supporting child, they cannot understand the child is not doing a good thing, he is involving something bad. So in that case we are telling them no, you have to take care of your child, but they are neglecting them. What should we do for them? That's what we are saying, and that's what ma'am also saying, that a proper counseling and a training session is required, not only for the child, for the parents as well. In my speech also, that was an area of concern, that everything starts from the family, no matter it is a good thing or a bad thing. So that particular type of training has to be, an awareness has to be given to the parents as well, that this thing should not be hide, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे बुरी चीज़ हो. So counselings of not only a student but a parent is also required. But if we are in a education institute, definitely we have to look after the child so that they can he or she can stop the any such activity in which the person, that particular student is indulged. तो उसके लिए काउंसलर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और मैंने ये देखा है क्योंकि हम बहुत सालों से, अब तो 28 साल से हम यही चीज़ें देख रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इफ़ देयर इज़ अ गुड काउंसलर, डेफिनेटली द स्टूडेंट्स आर वो सुधरे हैं और उनके कंडक्ट में बहुत चेंजेस आए हैं. बट वो चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ती है. और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो काउंसलर जो होते हैं, दैट शुड बी द थिंग्स विच हैज़ बीन शेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स, दैट शुड बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल. कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप नहीं करते हैं, नो मैटर इट इज़ रिलेटेड टू पॉक्सो, नो मैटर इट इज़ टू पॉश, हम तो आईसीसी के भी मेंबर हैं और हम ग्रीवियंसेस देखते हैं. तो अगर आपने कॉन्फिडेंशियली नहीं दिया है,
दोनों चीज़ें हैं, स्टूडेंट को भी बोलिए और जो जिसके साथ भी कोई गलत चीज़ होता है उसको भी बोलिए। अगर वो है तो फिर आप अगर समझाते हैं तो बच्चा ज़रूर समझता है। So in that particular case, role of the counselor is really needed and confidentiality is required. Thank you, ma'am. Ma'am, I would just like to add one more thing to Please. ma'am, coming from the mental health background. जो भी inappropriate behaviors आप classrooms में observe कर रहे हैं, उनको आप इस नज़रिए से देखिए कि वो कुछ skill deficits हैं। यदि हम उनको जज करने पे उतर जाएंगे तो डेफिनेटली वो राइट और रॉन्ग के क्राइटेरिया में आ जाते हैं। आप इसको स्किल डेफिसिट के नज़रिए से देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि अगर गलत व्यवहार कर रहा है तो परिणाम गलत होगा। कॉन्सिक्वेंसेस जब शब्द हम रिप्लेस करते हैं राइट और रॉन्ग के साथ, एज अ काउंसलर हमारा अप्रोच बदल जाता है। अब हमारा नज़रिया ये है कि जो कॉन्सिक्वेंस बच्चा फेस कर रहा है अपने गलत व्यवहार की वजह से, उस कॉन्सिक्वेंस से बच्चे को निकालना है, ना कि उसको इस बात का पाठ पढ़ाना है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। आप आम जिंदगी में देखिए, किसी के लिए कोई किसी का खून भी कर सकता है और उसको जस्टिफाई कर सकता है। तो सही और गलत के मायने स्पेशली बच्चों में जो बड़े हो रहे हैं, जिनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ बाद में डेवलप होती हैं बट सोशल एबिलिटीज़ ज़्यादा जल्दी डेवलप हो जाती हैं, इसी की वजह से गलत व्यवहारों में पड़ते हैं। तो उस केस में जीवन जीने के कौशल, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाना चाहिए रादर दैन उन्हें मैं कहूँगी मॉरलिस्टिक तरीके से चीज़ें समझाई जाए, क्योंकि वो नहीं समझ पाएंगे, कॉग्निटिवली वो इतने एडवांस नहीं है। बेहतर है कि वो उनका जो स्तर है उस स्तर पे गिर के उनको समझाया जाए रादर दैन जो एबिलिटी नहीं है उसके पीछे भाग के फिर फर्दर प्रॉब्लम्स में बच्चे को डाला जाए। मेरा ये पर्सपेक्टिव है। उनके पास काउंसलर्स हैं कहाँ सर? इन एज फार एज एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काउंसलर्स अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि ऐसे काउंसलर्स कोई रेयर स्कूल होगा। मैडम के पास होंगे तो होंगे, सर पता नहीं, मैडम बता पाएंगी। मैम यूजुअली इन विच यूनिवर्सिटी आई हैड, तो वहाँ पे तो रहते हैं, बट हाँ डेफिनेटली स्कूल लेवल पे तो काउंसलर्स की ज़रूरत है एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड एंड दैट शुड बी मैंडेट नाउ दैट देयर मस्ट बी अ काउंसलर। लाइफ स्किल्स सर, यस सर, यस सर। सब बेसिक लाइफ स्किल्स हैं, जैसे सोशल स्किल्स होती हैं, इमोशनल स्किल्स होती हैं, कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं। जो भी हमारे एरियाज़ हैं, जो क्षेत्र हैं डेवलपमेंट के बच्चे के, फिज़िकल है, सोशल है, स्पीच लैंग्वेज है, इमोशनल है, कॉग्निटिव है, इन सब एरियाज़ के अंदर कुछ स्किल्स हैं जो एज अप्रोप्रिएटली बच्चों को हमने सिखानी है। जैसे कि आपने किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से आपने अपने एंगर को असर्टिवली निकालना है, चैनलाइज करना है, बात करने का तरीका और बात करने के शब्द क्या होने चाहिए हैं, फिर मिलनसार बनने के क्या तरीके हैं। बेसिक लाइफ स्किल्स हैं। आप अपने विचार कैसे व्यक्त करेंगे किसी के सामने, ये सब एरियाज़ के अंदर काम करते हैं, क्योंकि यही तो डेफिसिट्स हैं जो दिख रहे हैं। अगर कोई बच्चा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर क्लासरूम में दिखा रहा है, चैलेंजिंग बिहेवियर क्लासरूम में दिखा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है उसको वो आता नहीं है, शायद उसका मतलब ये उसने उसको सही से सीखा नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट the abilities that a child has, it's about the needs of the child also, it is about the opportunities that the child has got. हम बिना पढ़ाए परीक्षा नहीं ले सकते हैं, हम पहले परीक्षा ले लेते हैं फिर पाठ पढ़ाते हैं। तो ये थोड़ा ये प्रोसीजर लाइफ स्किल्स अगर सीख जाए तो थोड़ा आसान हो जाता है बच्चों के लिए। आजकल बहुत ट्रेनिंग सेशंस होते हैं इसके, स्पेशली लाइफ स्किल्स के, लाइक टाइम मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, जैसे मैम ने बोला, तो इट इज़ ऑफन कंडक्टेड इन द स्कूल्स। तो वो आजकल मैंडेट हो गया है तो काफ़ी होते हैं। सर नमस्कार। प्लीज मैम। सर मैं प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जबलपुर। मैडम की बात को कंटिन्यू करूंगी कि जैसा कि बताया कि बच्चे जब क्राइम करते हैं और उसमें आते तो उनके बैकग्राउंड के बारे में हमको बहुत ज़रूरी है कि पता चले और उनकी काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। पर मैडम ने जो बताया कि प्रैक्टिकल चीज़ ये है कि हम लोगों के पास काउंसलर नहीं है, हम लोगों के पास जो SIR रिपोर्ट्स आती हैं, जो उनके सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट जो होती हैं वो प्रॉपरली बन के नहीं आती है कि हम उस बच्चे के बारे में उनके जो जितना हम बच्चे से इंटरेक्ट कर पाते हैं हम उतना उसके बारे में उस समय जान लेते हैं। लेकिन ज़रूरी होता है कुछ चीज़ें जो हमारे सामने नहीं आ पाती हैं, हम उनसे पूछना रह जाता है। तो परिवीक्षा अधिकारी जो रिपोर्ट्स बनाते हैं इतने ज़्यादा ओवरबर्डन है
कि चिल्ड्रन कोर्ट्स में भी उनको रिपोर्ट्स देनी है, हाई कोर्ट्स में भी रिपोर्ट्स देनी है, उनके पास एक्सक्यूज़ेज़ है। पूरे इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट में भी एक ही अगर परीक्षा अधिकारी उनका कोई और कोई हैंड नहीं है, तो हम लोगों के पास रिपोर्ट्स भी बहुत डिले आती है। तो हमको उस केस में इतना डिले हो जाता है कि हम उनकी और उस बच्चे के संबंध में कुछ डिसीज़न लेने में भी डिले हो जाता है। तो हमारे पास प्रैक्टिकली देखा जाए तो कुछ भी रिसोर्सेज बहुत कम है, काउंसलर्स की भी समस्या है, परिवीक्षा अधिकारी की भी समस्या है, और बहुत सारी ऐसे समस्याएं हैं जो हम लोग उसको नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम अपने लेवल पर उसको सुधार सकें। लेकिन जब तक हम लोगों के पास काउंसलर्स नहीं होंगे जो बच्चे के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल हमको रिपोर्ट दे सके, परिवीक्षा अधिकारी नहीं होंगे, तो हम उस बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में इतने डेप्थ में जाके नहीं पता कर पाएंगे और उनके संबंध में इतना डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। एक हमारे मैम की भी एक समस्या थी कि जो पॉक्सो विक्टिम्स रहते हैं, तो उसमें कुछ विक्टिम ऐसे भी रहते हैं जो ऐसे इतने रूरल एरिया से आते हैं कि वो खुद भी साइन लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, उनके पेरेंट्स भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनकी हम जो एविडेंस है वो कैसे रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये भी एक इशू रहता है कि कोई समझ ही नहीं पा रहा है उनकी लैंग्वेज को, बोल भी नहीं पा रहे हैं बच्चे, तो ये भी एक प्रैक्टिकल समस्या आती है। एडवोकेट भी नहीं समझ पाते हैं उनकी लैंग्वेज को, कोई भी उनकी भाषा नहीं समझ पाता है, पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते। मैम सर को अगर माइक देंगे तो ही वांट्स टू से समथिंग। जो लास्ट पार्ट बताया साइन लैंग्वेज के संबंध में, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस से भोसले सर थे, अभी वो चले गए हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में भी जो है ये वाला बात बताया था कि एक संस्था है बेंगलोर बेस्ड, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने पूरा ईयर के संबंध में उनको जो है वो कांटेक्ट दिया और उनको वो इंगेज कर रहे हैं, प्रोसेस में है। बहुत जल्दी जो है वो ये हो जाएगा कि पूरे कोर्ट में QR कोड के माध्यम से उसको केवल आप स्कैन करके साइन लैंग्वेज के इंटरप्रेटर्स जो हैं वो थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको पूरे मध्य प्रदेश में जो है वो अवेलेबल मिलेंगे, जो वो रियल टाइम में रहेंगे। उनको ये दिया गया है कि जो वर्किंग आवर्स हैं 10:30 से 5:30 के, उस दौरान जो है वो किसी भी जगह जहां उनकी आवश्यकता है कोर्ट्स में, वहां पर फिर वहां पर थोड़ा सा है, मतलब अगर आपको इंटरप्रेटर चाहिए देन जो है वो आपको पूरे उसमें मध्य प्रदेश में सभी कोर्ट्स में अवेलेबल मिलेंगे। ये थैंक यू सर। सर आप और भी लोग बोलना चाह रहे हैं, देखिए सर बहादुर जी, कि उनके माता पिता भी नहीं समझ पा रहे हैं वो समस्या। सर एक चीज कंक्लूड करना चाहूंगा, आपस में बात करके एक एक करके सवाल उठाएंगे। जैसा सर ने अभी लाइफ स्किल की बात करी, रिक्वेस्ट है अपना हैंड्स बस रेज करें। सर लाइफ स्किल की जो आपने बात करी, नॉर्मल स्कूलों में लाइफ स्किल जो है वो नहीं पढ़ाई जा रही, लेकिन मध्य प्रदेश शासन में एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, ब्रिज कोर्स चलते हैं 303। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलते हैं, जो बच्चियां छूट जाती हैं उन्हें रह के पढ़ाते हैं, उनके लिए लाइफ स्किल्स के 67 सेशन का एक मॉड्यूल बना है और वो बहुत अच्छे से 10 लाइफ स्किल्स के ऊपर पाठ पढ़ाता है और सबको सिखाता है, पर ये नॉर्मल स्कूल्स में नहीं होता, होना चाहिए। थैंक यू सर। वेरी गुड इवनिंग। थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा सभी लोग। हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सना खान है। मैंने एक सजेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी कैन हैव डिस्प्ले बोर्ड्स इन वेरियस इंस्टीट्यूशंस वेयर इन अ हैंड टॉक ट्रांसलेटर्स कैन बी इंस्टॉल्ड विच कैन हेल्प इन कम्युनिकेशन ऑफ चिल्ड्रंस विथ डिसेबिलिटीज़। जैसे अगर उनको कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाना है तो मेडिकल इंस्टीट्यूट में अगर कोई हैंड टॉक ट्रांसलेटर का अगर कोई डिस्प्ले बोर्ड रहेगा जहाँ से वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वहीं पर अगर कोई चीज़ जो उसका प्रिंट आउट निकाल के बता सकते हैं कि किस तरह वो क्या चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट उनको उस बात को वो कन्वे तो कर सकते हैं। ये एक फर्स्ट सजेशन था। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि जो डिसेबिलिटीज़ के जो चिल्ड्रन होते हैं उनके पास में अडेप्टिव क्लोथिंग की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। आई हैव सर्च्ड अ लॉट इन दिस रिगार्ड, कहीं पे भी इंडिया में भी इस रिगार्ड में कोई काम नहीं किया जा रहा है। एंड थर्ड सजेशन विच आई वांट टू मेक ओवर हियर इज़ अडेप्टिव व्हीकल फैसिलिटीज़ इज़ ऑल्सो नॉट देयर, कि किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रेन फैसिलिटीज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द कार फैसिलिटीज़ इफ़ वी कैन हैव इन पर डिस्ट्रिक्ट अगर हो सकती है पॉसिबल। सो दिस वाज माय रिक्वेस्ट।
साइकोलॉजी की बात हो रही है, हम बच्चों की बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम डॉक्टर पंकज मारू, आई एम रिप्रेजेंटिंग द पेरेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, आई एम नेशनल प्रेसिडेंट। 1,40,000 पेरेंट्स हमारे साथ हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पेरेंट आई वांट टू शेयर विथ यू। जो मैंने देखा है पिछले 3 साल से मैं इसका देख रहा हूँ, तो जब बच्चा इंटेलेक्चुअली, और मैं खुद भी पेरेंट हूँ, जब बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल होता है तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी आपने बैंगलोर का केस सुना होगा, मदर ने अपने बच्ची को मार दिया क्योंकि उसका एडमिशन स्कूल में नहीं हुआ था। उसकी 2 बेटियां थी लास्ट मंथ। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कई सारी मदर्स को उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया क्योंकि बच्चा या बच्ची इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड है। नाउ हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन थ्रू साइकोलॉजी, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा नंबर है इस कंट्री में। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की नंबर की बात करें, 2011 सेंसस 85 lakhs आउट ऑफ 2.68 करोड़, एंड एज ऑफ नाउ क्योंकि 33% है, तो आज की डेट में मोर देन 2 करोड़। ऑटिज्म 1 in 37 एज ऑफ नाउ। हर 37 बच्चे पे एक बच्चा ऑटिस्टिक है, एंड इट्स वेरी मोस्ट वल्नरेबल डिसेबिलिटीज, चाहे CP, ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम। सो फैमिली के अंदर इसको हाउ टू हैंडल दिस, बिकॉज ये बड़ा इशू बनता जा रहा है। तो कैन यू प्लीज सजेस्ट अस, सो फ्रॉम माई प्लेटफॉर्म आई कैन शेयर समथिंग विद माई अदर पेरेंट्स, प्लीज। मैम योर प्लीज। सर, गांव में एक कॉन्सेप्ट होता है चौपाल का। आप आइडेंटिफाई करिए जो फैमिलीज़ आपके साथ जुड़े हुए हैं उनमें से जो पेरेंट्स, मैं आपसे ये आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि जो छोड़ के जा चुके हैं, वो नहीं, वो इंटरेस्टेड नहीं है। बच्चे के साथ जो है और बच्चे के साथ काम करने में जो रुचि रखता है, जिसको बच्चा दिखता है, बच्चे का भविष्य दिखता है, और इस बात में उस इंसान को रुचि है कि उसके जीवन का भी कुछ अर्थ है, ऐसे पेरेंट्स एक चौपाल के कॉन्सेप्ट से ऐसे पेरेंट्स को ग्रुप्स, सपोर्ट ग्रुप्स में हम डाल सकते हैं, जिनको फर्दर हेल्प मिलाई जा सके, दी जा सके थ्रू काउंसलर्स, हाउ टू हैंडल दीज रियल टाइम चैलेंजेस ऑफ सिंगल पेरेंटिंग, ऑफ पेरेंटल पैथोलॉजी। अगर किसी वाइफ को कोई हस्बैंड छोड़ के जा रहा है तो उस वाइफ को डेफिनेटली डिप्रेशन होगी, पार्टनर के जाने की भी होगी, बच्चे की तो होगी ही, बच्चे के फ्यूचर को लेके कंसर्न तो होगी ही। जो फैक्टर्स बच्चे की ग्रोथ में हिंडर कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ फैक्टर्स, मदर के, फादर के, उनको भी फैक्टर इन किए, और बच्चे को कैसे देख रेख करनी है उनको भी। कुछ ऐसे पेरेंट्स, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा मोटिवेटेड कोई नहीं होगा चेंज के लिए, और यदि आप उनके भी जीवन को एक अर्थ दें, मीनिंग दें, डिस्पाइट ऑल द हार्डशिप्स दैट दे हैव, to come together in support groups, talk about their difficulties, take support of each other, and also supervise this entire activity, whether in the form of focus groups or in the form of any discourse or any training or any lecture through counselors. I think that will reduce the burden on counselors, that will motivate social elements to be there for the children. अभी सुबह एक चीज़, मुझे एक कोट याद है, मतलब अच्छे से नहीं है, मैं उसको पैराफ्रेज कर रही हूँ, आई अपोलोजाइज टू द पर्सन हु हैड सेड दिस, दैट वी आर ऑल बॉर्न विद ब्रोकन विंग्स. देयर वाज समथिंग टू दैट इफेक्ट समबडी हैड सेड इन द मॉर्निंग, in the context of yes butterflies with broken wings. So अगर मेरा एक पंख टूटा है और बाजू वाले का एक पंख है, तो 4 पंख ना होते हुए 2 पंखों से भी एक दूसरे के टूटे हुए पंख मिला के हम उड़ सकते हैं. तो ये सभी को नमस्कार. मैं डॉक्टर मनीष पांडे, एक्स चेयरमैन CWC. हमारे पास जो बच्चे आते थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि जब कोई ऐसा डिसेबल बच्चा आ जाता है तो उसको कहाँ रखा जाए. हमारे यहाँ जितने भी मध्य प्रदेश में सेंटर्स हैं सब ओवर क्राउडेड हैं. तो मेरा एक सजेशन ये है कि CWN जो छात्रावास हैं उन छात्रावासों को पंजीकृत किया जाए JJ एक्ट में, और ताकि हम बच्चों को वहाँ पहुँचा सकें. दूसरा कि जो यूनिक आईडी बनी हुई है, जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके यूनिक आईडी बनी हुई है, उन यूनिक आईडी वालों के लिए
शो मोटो लेके जैसे हम केस में वहाँ आगे जाते हैं, तो वैसे ही क्या किया जाए कि जिनकी यूनिक आईडी बन गई है उनके पास विभाग की सारी जानकारी और फैसिलिटीज़ की सारी जानकारी लेकर हम उन पेरेंट्स के पास जाएं, क्योंकि पेरेंट्स चल के वहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स उस लाभ को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हमारा ये दायित्व बनता है कुछ ऐसी योजना बनाई जाए कि हम उन तक पहुँचें। थैंक यू। थैंक यू। आप कुछ ये साहब ने देखिए, हाँ इनके पीछे एक और साहब, हाँ अपना हाथ उठाएं सर जिन्होंने, हाँ ये प्लीज़, अच्छा हाँ उनके सामने जी लॉर्डशिप। सर मैं डॉक्टर रामनरेश पटेल बोल रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट की समस्या बहुत ज़्यादा है। आज आप पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। एक बार मैं डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट के समनापुर में एक गांव है कमरा सोढ़ा, वहाँ हमने जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत जिन बच्चों को प्रवेश दिया गया था, जब उनकी हमने फैसिलिटी की बात की तो उन्होंने कहा सर ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बना है। हमने कहा क्यों? बोले साइकोलॉजिस्ट कई बार हम जाते हैं बोर्ड में और साइकोलॉजिस्ट न होने के कारण हम वापस ले आते हैं। तो ये छोटे छोटे ज़िले जहाँ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट की समस्या है सर, जिस कारण से यूनिक आईडी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने में बहुत देरी होती है और इस कारण से बहुत सारे बच्चे फैसिलिटी से वंचित हो जाते हैं। यह हमने खुद साक्षात देखा है और कई जगह हमने आकलन किया है सर। थैंक यू। एक लास्ट सर बताएं कौन बाकी ये जो खड़े हुए हैं, हाँ प्लीज़। कल भी है हमारा सेशंस बहुत सारे, बाकी लोगों को हम लोग जी प्लीज़ आप बताएं सर। ये लास्ट प्रश्न है या सुझाव जो भी आप दें। जी जी प्लीज़। मैं तो टेली जो भी मेरा नाम शिवेन सिंह परिहार है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज़, एक सेकंड। क्या टेली कॉन्फ्रेंसिंग से जब हम तो पूरी की पूरी अदालत चलाते हैं, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलते छोटी जगह पे, क्या ये इशू टेली कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं सेटल हो सकता? क्या फिज़िकली या सामने बच्चे का होना ज़रूरी होता है क्या? यूडीआईडी के लिए नहीं, जी मैम उसके लिए तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए जो जी मैम वो एक टेक्निकल प्रोसीजर है आई थिंक। अच्छा। उसको टेली कॉन्फ्रेंसिंग आई एम नॉट रियली मतलब श्योर कि दैट कैन बी लोग तो सर्जरी भी अब आजकल तो उससे हो रही है। कहाँ करिए, नंबर बताइए अपना प्लीज। मैं मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ दे के जाऊंगा, दे दूं 9713748156। आप कंप्लेंट करिए, हम उसका निराकरण करवाएंगे। और बेंच लगा के हमने डिंडोरी जिले में भी करवाई है और वहां पर हमने डिसेबिलिटी के 8 सर्टिफिकेट उसी दिन बनवाए थे जहां तक मुझे याद है। तो कोई भी कंप्लेंट बच्चों से जुड़ी हो आप पहुंचाइए, समाधान करने हम द्वार तक आएंगे। थैंक यू। बहादुर भैया उनको मैं एक सुझाव है लॉर्डशिप के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अभी डायरेक्टर एजुकेशन का जब प्रेजेंटेशन हो रहा था तो उन्होंने एक बात एड्रेस की थी कि जो दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं उनको हम लैंग्वेज में छूट दे रहे हैं, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दे रहे हैं। तो एक विद्यार्थी के रूप में मुझे लगता है, और अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं दिव्यांग के, उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं तो हमें उन्हें विषय से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। तो लॉर्डशिप से मैं निवेदन करूंगा कि जो विषय प्रतिबंधित किया जा रहा है लैंग्वेज में, इंग्लिश ले लो आप या हिंदी ले लो या संस्कृत ले लो, किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर रोका जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दिव्यांग के साथ, क्योंकि उसकी प्रोग्रेस उसके विषय और सब्जेक्ट से होती है। जब बच्चा मैथ पढ़ता है, बच्चा इंग्लिश पढ़ता है, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, उसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इजी रूप में पार्टिसिपेट करता है और सफल होता है। जी, वो शायद ऑप्शनल भी हो सकता है कि अगर वो 2 पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। लेकिन लॉर्डशिप इस बार नहीं किया है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अच्छा। विषय में बांध दिया गया है। जी, वो समरेश मलिक साहब आप जरा उसको नोट कर लीजिएगा, कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ। जी एक, हाँ ये भी है, इनसे भी पूछ लें लास्ट इनका क्वेश्चन। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित त्रिवेदी। मैं अभी जो चर्चा चल रही थी सब्जेक्ट्स के बारे में,
मैं ये बताऊंगा कि जो छूट का जो प्रावधान है वो सिर्फ पीपल विद हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं और लैंग्वेज बैरियर होने के कारण जैसे उनको ये छूट दी थी एक्ट में कि उनको या तो एक लैंग्वेज लेने की सुविधा हो अगर वो चाहें तो, क्योंकि लैंग्वेज एक माध्यम होता है। अगर एक बच्चा जो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता उसके कारण से, तो उसके लिए तीन लैंग्वेज को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए उसको। पर यहाँ पर क्या है कि हम ब्लाइंड बच्चों को, क्योंकि हमारे पास टीचर नहीं है इसलिए उनको मैथ्स नहीं सिखाते, तो ये हमारे यहाँ का एक भी ब्लाइंड बच्चा IIM में नहीं गया, हमारे यहाँ का एक भी ब्लाइंड बच्चा IIT में नहीं गया, जबकि और देश के जगहों से और बच्चे जा रहे हैं सब जगहों से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करना है स्कूल्स में। बस इतना मुझे बोलना। थैंक यू सर। Sir, now, if you permit, sir, seeking permission, we'll close this session, sir. Thank you, sir. Sir, आप सभी से आग्रह है, हाँ, सर मेरा सर कंपनसेशन के रिगार्ड में रिक्वेस्ट था कि पॉक्सो कोर्ट्स द्वारा कई मामलों में कंपनसेशन अवॉइड कर दिया जाता है, पर टाइमली कंपनसेशन मिल नहीं पाता है बजट अलोकेशन की वजह से विक्टिम कंपनसेशन स्कीम में। तो मैं डालसा में भी सेक्रेटरी रहा, तो ये समस्या वहाँ भी रही और कंपनसेशन दिला नहीं पाए टाइमली। जी जी जी, डिसबर्सल विल टेक इट सर। सर, आप सभी से आग्रह है, सुबह 9:30 बजे शार्प आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप यहाँ उपस्थित रहें। सर, थैंक यू। आप सभी को एक चीज़, आज कल्चरल एक प्रोग्राम है 8 बजे, तो यू पीपल आर इनवाइटेड 7:30 प्रिसाइजली 7:30 बजे। अच्छा अच्छा।